Hi students. So till now we have already discussed the different evidences which support the process of evolution. There are different evolutionary evidences we have discussed, and we have discussed about the morphological and anatomical evidences. Then we have discussed embryological evidences. Then we have discussed biogeographical evidences. Then also we have discussed cytological, biochemical and physiological evidences, right? So, in the psychological, biochemical, and physiological evidences were the last topic which we were discussing. So, here in that part, what we have learned that what we have discussed that the enzyme like amylase, trypsins, okay. So this enzyme what we can find there's the different organisms start from the most simplest one, that is the sponges, to the most complex one, that is the mammals. Everywhere we can find the same enzyme. Also, we have seen the effect of the hormones are also can be visible in the simple organism as well as in the higher organism or the most complex or advanced organism, right? वैसे हमने और क्या देखा, साइटोक्रोम जो है वो भी सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में लगभग मिलता है, काम होता है उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. देन आल्सो वी हैव सीन द ब्लड एंड द लिम्फ. ठीक है, उसके जो बेसिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है वो कॉमन होता है सारे एनिमल्स में लगभग, वो हमने देखा. ठीक है, जैसे कैट, डॉग, बहुत सारे एनिमल्स में वो कॉमन होता है, जैसे चिंपैंजी और ह्यूमन का जो हेमाटिन क्रिस्टल है ब्लड प्रोटीन में. ठीक है, सो वो भी लगभग सेम है. तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है these are the evidences which proves that we might have the most advanced animal might have actually developed from the most simplest one. ठीक है, ब्लड ग्रुप भी हमने देखा, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा, ब्लड ग्रुप में हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है वो एप्स और ह्यूमन में ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कॉमन है, उनमें भी होता है. ठीक है, लेकिन मंकी में नहीं होता. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने पहले भी कल भी बताया था तो आज ही बताना जरूरी है. मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था तो अभी भी इस वीडियो लेक्चर में बताना जरूरी है कि देखो मंकी और जो ह्यूमन है ये दोनों एक्चुअली ह्यूमन जो है वो मंकी से इवॉल्व नहीं हुआ है. सो देयर आर सम मिसकंसेप्शन. The monkey and the human being, they have actually evolved from a common ancestor. Both of them are actually evolved from a common ancestor. We evolved in a different way and they evolved in a different way. Okay, so don't never think that we all evolved from monkeys. Monkeys and us, we both evolved from a common ancestor. That is true actually. Okay. Then also you have discussed the excretory system. Like then also you have seen that there are like organelles, different organelles present in the cell. In all the organisms' body are almost same, right? Now the next is we are going to discuss the theories of evolution. देखो हमने जब origin of life हमने पढ़ा था, when we studied the origin of life, that concept, that part. So there also we have studied some theories. ठीक है, so हमने बहुत तरह का theory पढ़ा था, काफी there are a number of theories we have studied which actually explain or which actually proposed the so-called origin of life, like means not so-called, like how the life is originated on Earth, right? So there were many theories we have studied. The same way, अब देखो यहाँ पे दो difference, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, whatever we have studied till now, ये एक्चुअली जब अभी चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन. तो हमको इवोल्यूशन समझना है, इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है. लेकिन अभी तक हमने इवोल्यूशन डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया. हम इवोल्यूशन पढ़ने के लिए जो बेस चाहिए है, जो बेसिक नॉलेज हमें चाहिए था, हमने अब तक वो पढ़ा. अभी हम क्या करने वाले हैं? हम इवोल्यूशन को अच्छे से समझने वाले हैं. इसके लिए इवोल्यूशन के ऊपर भी बहुत सारा थियरीज है जो हमें समझना होगा. ठीक है, जैसे लाइफ के ओरिजिन के ऊपर भी काफी सारी theories है, जैसे कि starting from the religious scriptures, then abiogenesis, biogenesis, chemogenesis, then the modern theory of origin of life, right? So the same way there are some theories are also present, or there are some theories which explain the evolutionary processes or evolution itself, right? देखो एक तो होता है लाइफ कैसे बना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. अब ये जो लाइफ जो बना हमने अभी तक पढ़ा, तो लाइफ फॉर्म क्या था? यूनिसेलुलर था और बहुत ही सिंपल लाइफ फॉर्म था. अब क्वेश्चन ये है कि इतने सिंपल लाइफ फॉर्म से
इतने वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, वो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स, सम आर लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, सम आर लिविंग इन द लैंड, इवन सम आर फ्लाइंग, ठीक है। तो इतने एडवांस, इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए? Because the life already the entire life, when it originated, the life form which was actually originated, it was a very simple and it was a unicellular life form. तो एक सिंगल से लाइफ फॉर्म से इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इतने एडवांस ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए? ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली वी विल अंडरस्टैंड बाय स्टडीइंग द इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी प्रोसेस. इट ऑल हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और वो इवोल्यूशन किस मतलब इवोल्यूशन हुआ कैसे, मतलब एक सिंपल यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म से कैसे इतने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म बन गए, जो कि ज्यादा एडवांस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और मल्टी सेलुलर है। उसी को ये जो चीज हुआ, ये जो घटना घटी, इसी को हमको समझना है, तो हमें इवोल्यूशन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था, बहुत तरह के थ्योरीज थे, जैसे लाइक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर जो था, ठीक है। देन also you have studied about other theories also, like theory of panspermiotic theory, then biogenesis, then modern theory of origin of life. The same way here also we have in evolutionary part, like to understand the evolutionary process, there are certain theories given by scientists. The first theory is which we will discuss, that is your Lamarckism, and the theory is also known as the theory of inheritance of Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है सबको, तो मैं इसीलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेमार्क में आप जहाँ पे भी ई देखो, एक्चुअल में वो ई नहीं है, these are all R, sorry A, तो जहाँ पे भी आपको ई नजर आए वहां पे A कर लेना, because it is not E, it is A. तो लेमार्किज्म, LAMARKER, सॉरी KAR, लेमार्क, LAMARK, लेमार्क, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, इसे मैंने शुरू में बता दिया, ठीक है। कहाँ जहां पर भी ये स्पेलिंग होगा, प्लीज करेक्ट इट। Now the Lamarck theory of inheritance is the first theory we'll discuss. Second we'll discuss the Darwin theory of natural selection. Then third theory we'll discuss, that is a mutation theory, which was given by Hugo de Vares. ठीक है, Hugo de Vares was a scientist who gave this theory. Then the last theory, that is also known as the neo-Darwinism or modern theory of evolution or synthetic theory of evolution, ठीक है। तो इतने सारे हमको जो evolutionary जो theories है उसको हमें पढ़ना है evolution के process को समझने के लिए, ठीक है। So we'll start with the first one, that is your Lamarckism. Lamarckism or the Lamarck's theory of inheritance of acquired characters, ठीक है। अब ये जो theory है, it was actually given by the scientist, his name was Jean Baptiste de Lamarck. इन्हीं के नाम से ये Lamarck theory बना है, ठीक है। तो उनका नाम, फुल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है। ना अब इस थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या था, वो हमें पहले डिस्कस करना है। अभी देखो पोस्टुलेट्स क्या है सर, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है द मेन पॉइंट, what the theory says, the main points, those are called postulates, right? So here the postulates are the Lamarck theory क्या क्या postulates दिया था, new need, first, second is use and disuse of organ, third is inheritance of acquired character, and the fourth one is your speciation, ठीक है। तो यहाँ पे जिराफ का एग्जाम्पल हम लिखे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। तो लेमार्क थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि व्हेन देयर इज न्यू नीड, जब कभी भी किसी एनिमल को कुछ नया जरूरत पड़ेगा तो एनिमल क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दैट नीड दे मे यूज सम ऑफ देयर ऑर्गन मैक्सिमम, और दे विल डिसयूज सम ऑफ देयर ऑर्गन, they will start to disuse the organ to the lowest limit, right? They stop using some organ, or they will use some organ continuously. एक तो क्या हो सकता है कि जब नीड है, जब जरूरतें बदल जाती हैं ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, वो अपना जो नीड है उसके हिसाब से अपना जो अपने बॉडी में अपने पास जो उनके पास जो ऑर्गन है उसको जरूरत पड़ा तो वो उसको यूज करेगा, नहीं जरूरत पड़ा तो उसको यूज नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है कि यूज करे या ना करे, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो मतलब जेनेटिकली एक्वायर्ड हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है,
जो कैरेक्टर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में उन्होंने एक्वायर किया, वो उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कैपेसिटी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेमार्क क्या कह रहे हैं कि अगर किसी एनिमल को नया नीड, जरूरत पड़ा, कुछ नई चीज करने की जरूरत पड़ी, तो देन व्हाट दे विल डू, दे विल, देयर आर टू ऑप्शन। एक तो वो कुछ चीजों, अपने अपने ऑर्गन्स को, किसी ऑर्गन को यूज करेंगे ज्यादा, या तो किसी ऑर्गन को यूज करना बंद कर देंगे। ठीक है, और ये जो है यूज ज्यादा करना या बंद कर देना, ये जो है, ये कैरेक्टर्स, ये जो उनका जो कैरेक्टर है जो उन्होंने एक्वायर किया, वो इनहेरिट हो जाएगा उनमें, और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाएगा। ये लेमार्क कहते थे। ठीक है, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक नया स्पीसीज बन जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। ठीक है, अब इसको थोड़ा जिराफ के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब देखो जिराफ जो था ना, द एंसेस्टर ऑफ द जिराफ्स वर एक्चुअली बेयरिंग अ स्मॉल नेक। तो जिराफ जो थे, उनके जो एंसेस्टर थे, उनका जो नेक था वो बहुत छोटा था। ठीक है, एंड दे वर लाइक हॉर्सेस, और उनका साइज जो था लगभग हॉर्स के जैसा था। अब देखो ऐसा हुआ कि जहां पे वो रहते थे, जो जिराफ, पहले वो बहुत बड़े नहीं थे, लगभग हॉर्स के साइज के थे, और उनका जो नेक था वो बहुत ही छोटा था। आपको सबको पता है कि जिराफ का जो नेक है वो बहुत लंबा होता है। उनका जो फोर लिम्ब है वो भी मॉडिफाइड है, वो भी थोड़ा सा हाइंड लिम्ब के कंपेयर में थोड़ा बड़ा है, लंबा है, स्ट्रांग है ना। तो जो जिराफ जो है वो पहले ऐसा नहीं था। जो प्रेजेंट जिराफ हम देखते हैं वो ऐसा पहले नहीं था। हुआ क्या, जहां पे जिराफ के एंसेस्टर रहते थे, जिस एरिया पे, जिस रीजन में, जिस लैंड में, वहां पे जो आपके बुशेस थे या छोटे जो प्लांट थे, वो किसी कारण वो बिकॉज ऑफ सम रीजन दोस प्लांट्स वेर डिस्ट्रॉयड, ओनली द टॉल बिग ट्रीज वेर लेफ्ट। अब सिर्फ जब बड़े लंबे ट्रीज हैं तो उनके उनके जो लीव्स है उसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो ऊपर होते थे। तो उस समय से लेके जो जिराफ उस एरिया में रहने लगे, वो क्या किए, जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दे ऑलवेज दे ट्राइड, दे हैव ऑलरेडी दे एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोसेस टू टेक टू एक्चुअली टू eat or take the leaf from the tall trees, and for that they used to stretch their neck, they used to give stress to their neck continuously for many generations, and as a result slowly the neck actually has increased, the length has increased, now they have very long neck. As a result they can take the leaf, they can eat the leaf of the plant or the tree of quite like generous height as well. ठीक है, तो अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कितने लंबे लंबे ट्री भी हो जाए, उससे उनको जो लीफ है वो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो लेमार्क्स का जो थ्योरी ये कहता है कि देखो नीड था ना। अभी जो जिराफ के एंसेस्टर, तो मैंने क्या कहा, जहां पे वो रहते थे, जिस रीजन में रहते थे, वहां पे जो बुशेस थे, वहां पे जो ग्रास लैंड था, वहां पे जो छोटे प्लांट थे, वो बर्बाद हो गए, वो खत्म हो गए। तो उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी नीड क्या है उनको, कि वो जो एकमात्र ऑप्शन उनके पास के जो लंबे लंबे ट्री है, बड़े ट्रीज हैं, बड़े जो प्लांट्स हैं, उनसे लीफ को खा के जिंदा रहना। तो नीड हो गया यहाँ पे, और जब नीड हो गया तो फिर वो खाने के लिए वो क्या यूज करने लग गए, अपने किसी ऑर्गन को। तो इनके केस में क्या यूज किए जिराफ ने, अपने नेक को यूज करने लगे। और जब वो यूज करने लगे तो हर एक जनरेशन में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, वो हर एक जनरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता गया। ऐसे करते करते एक समय आया क्या, कि एक नया स्पीसीज बन गया, और जिसे हम कहते हैं आज जिराफ, जिसका नेक बहुत लंबा है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया, और दिस वाज द concept behind the Lamarckism or the Lamarck theory of inheritance of acquired characters. I hope it is clear, right? Next we'll discuss example. तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले जिराफ, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ। नेक्स्ट क्या है, स्नेक। ठीक है, especially we'll talk about python and boas. These are the two snakes we'll talk. ठीक है, and this python and boas have a small remains of pelvic girdle. ठीक है, जो पाइथन एंड बोआस है, अगर इनका हम जो स्केलेटल स्ट्रक्चर देखेंगे, एंडोस्केलेटल देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें देखने मिलेगा कि पेल्विक गर्डल है इनके बॉडी के अंदर, इनके जो एंडोस्केलेटन है उसमें। इससे क्या पता चलता, इट शोज दैट देयर एंसेस्टर्स माइट हैव हाइंड लिम्ब। इससे क्या पता चलता है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे, इनका हाइंड लिम्ब था। अभी देखो नॉर्मली स्नेक्स क्या है, रेप्टाइल्स है, और
जो स्नेक है इसके इसके तो पैर नहीं होते, दे आर क्रॉलिंग, राइट। इवन दो इफ वी सी सम स्नेक लाइक पाइथन एंड बोआस, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन है उसमें पेल्विक जो गर्डल है वो हमें मिलेगा। तो पेल्विक गर्डल तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका हाइंड लिम्ब है उसके जो अपेंडेजेस है, हाइंड लिम्ब के जो पार्ट्स है वो अटैच होता है पेल्विक गर्डल से। इसका मतलब है इनके पास पहले लेग्स थे, दे यूज्ड टू हैव द लेग्स, राइट, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन धीरे धीरे वो लेग्स का यूज करना बंद कर दिए, दे स्टॉप द यूज, दैट मींस डिसयूज ऑफ दैट ऑर्गन एंड स्लोली स्लोली इट वैनिशेस। उन्होंने लेग का यूज करना बंद कर दिया, इसीलिए धीरे धीरे जो लेग है वो गायब हो गया, लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आज भी हमें दिखता है, ठीक है ना। नाउ aquatic birds, now they don't use wings but the feet too are in use and develop waves। देखो अभी aquatic birds मतलब डक का एग्जांपल लेते हैं। अब जो उनके विंग्स है तो वो तो यूज नहीं करते ज्यादातर, वो मतलब इसके इसके लिए लाइक फॉर फ्लाइंग, बट वो अपने टोज को यूज करते हैं स्विमिंग के लिए। इसीलिए जो उनके टोज है ना, अगर आप देखोगे डक के टोज है तो उनके टोज के उनके जो फिंगर्स है, डिजिट्स है, उसके बीच में क्या होगा, वेव विल फॉर्म, अ थिन स्किन स्ट्रक्चर विल फॉर्म व्हिच इज अ वेव व्हिच हेल्प देम फॉर स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये सारा एग्जांपल क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सॉरी, फ्लाइटलेस बर्ड का अगर हम देखेंगे तो फ्लाइटलेस मतलब क्या है, उड़ नहीं सकते। तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े जो बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। वो क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दे हैव स्टॉप्ड दे यूजिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को यूज करना उन्होंने बंद कर दिया बहुत पहले, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता गया, ट्रांसफर होता गया, और finally we have that some birds which are flightless as well. The Lamarckism was based on comparative study between fossils and existing organisms. जो लेमार्किज्म है ना, ये जो लेमार्क साइंटिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, उन्होंने किया था, उन्होंने एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी किया था किसके बीच में, फॉसिल्स के बीच में और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। मतलब जो ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें मिला है उसका प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कैसा है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको हम कंपेयर करके हमने स्टडी किया, वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। अब देखो जो लेमार्क ने जो कहा वो 100% या 100% सही भी नहीं था। कैसे नहीं था, उसके लिए अभी हमने जो भी एग्जांपल पढ़े, इट इज सपोर्टिंग द थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस सर्टेन थ्योरीज और सर्टेन लाइक हाइपोथेसिस आल्सो, and those which is actually against or which is actually not supporting the theory actually, which is against the theory. तो पहला क्या है, there was a scientist whose name was August Weismann, so who actually gave one more theory, that is the theory of continuity and germplasm, ठीक है। तो ऑगस्ट वाइसमैन ने ये थियरी दिया था। अभी क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ये है कि अगस्त वाइसमैन ने क्या किया था कि ही टुक माउस, उन्होंने क्या किया, माउस का जो टेल है उसको उन्होंने काफी जनरेशन तक काट दिया। मतलब ऐसा क्या हुआ क्या, थोड़ा समझना है कि उन्होंने माउस लिया और उसका टेल काट दिया, एंड देन व्हाट ही डिड, ही अलाउड द माउस टू रिप्रोड्यूस। तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन आया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को फिर उन्होंने बढ़ा किया, फिर उसका टेल काट दिया, फिर उनको भी लाइक मीटिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए छोड़ दिया, फिर उनका जो भी नेक्स्ट जनरेशन आया उसका भी टेल ऐसे काट दिया। ऐसे करके उन्होंने कम से कम 20 जनरेशन तक ऐसा उन्होंने किया, लेकिन फिर भी जो टेल है, जो ऑफस्प्रिंग है, दे आर नॉट बॉर्न विदाउट टेल। सब में टेल था, सब कुछ नॉर्मल था। जब भी कोई ऑफस्प्रिंग जन्म लेता था तो उसके अंदर टेल होता था। तो यहाँ पे वाइसमैन ये प्रूव कर रहे हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट नहीं होता है नॉर्मली, otherwise we have cut the tail of the mouse for many generation till now. The mouse is having the tail, the offspring of the mouse is also having the tail, ठीक है। So that was a criticism given by August Weismann, ठीक है।
who also proposed the theory of continuity and germ plasm. ठीक है, नेक्स्ट Pavlov's experiment. Pavlov experiment आपने पढ़ा होगा, वो बेल जो बेल एंड लाइक रिंग बेल और रिंग एंड द बेल एंड द डॉग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो उसमें हुआ क्या, तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें पैवलोव एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे हम क्रिटिसिज्म में। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होके नहीं जाता, ये है क्रिटिसिज्म, ये प्रूव है। जैसे पैवलोव एक्सपेरिमेंट में क्या हमने किया था, हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, पैवलोव एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया था। तो वहां पे क्या होता है कि जो डॉग है, व्हाट वी डू, वी एक्चुअली बेल, उन्होंने क्या किया, पैवलोव ने एक बेल रिंग किया, फिर डॉग को बुलाया और खाना दिया, ऐसे करके उन्होंने काफी बार ऐसा किया, काफी दिन तक ऐसा किया। इससे क्या हुआ फाइनली कि अभी बेल रिंग करने से ही जो डॉग है इट इज ऑटोमेटिकली कमिंग एंड द गैस्ट्रिक जूस आल्सो गेटिंग स्टार्टेड सीक्रेटिंग, सलाइवा भी सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैरेक्टर डेवलप किया उन्होंने, ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ Pavlov's experiment. नेक्स्ट, रेस्टलेस मसल्स आर वेल डेवलप्ड। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे जो लोग हैं जो मसल बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनके जो मसल्स है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो है, बहुत ही बढ़िया शेप का है उनका बॉडी, लेकिन फिर भी उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि उनका भी ऐसा ही फिजिक जो है वो हो। So this also shows that the acquired characters is not getting transferred genetically, right? Next, boring of nose and ears. अब देखो बोरिंग ऑफ नोज ईयर्स, जैसे कि हमने देखा है कि फीमेल के केस में क्या होता है कि उनके कान और उनके नाक में पियर्स किया जाता है, बोर किया जाता है, ताकि ऑर्नामेंट्स दे कैन वेयर ऑन ऑर्नामेंट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। बट ऐसा होता है क्या कि नॉर्मली अगर किसी लेडी ने जो पियर्सन करवाया है, जो सॉरी पियर्स करवाया है अपने ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करने के लिए, is it going to transfer to the next generation, that is to her offspring? No, it is also not going to transfer. So ये भी सारा ये जो है ना, ये this proves that actually the कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट होके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता ऐसा। तो इसीलिए ये जो सारा हमने डिस्कस किया, दिस आर ऑल क्रिटिसिज्म, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चाइना में क्या होता है ना कि चाइना में जो लड़कियां होती है उनको बहुत ही छोटे समय से उनके स्पेशल तरह का एक शू होता है, वुडन मतलब लकड़ी से बना हुआ, उसमें वो एक्चुअली वो अपने फीट को वहां पे उसको यूज करते हैं, पहनते हैं। इससे क्या होता है, जो शेप होता है जो फीट का या जो आपके पैर का, वो मेंटेन रहता है, ये हम जिसे कह सकते हैं छोटा रहता है, स्मॉल फिट हो जाता है, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ द वुडन शूज स्पेशली। और चाइना में क्या है, लोग इसको एक सिंबल ऑफ ब्यूटी मानते हैं कि लड़कियों का पैर अगर छोटा हो, सो दैट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी इन चाइना, ठीक है। नाउ विच एक्वायर्ड बाय द यूजिंग ऑफ वुडन शू, ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ये भी एक प्रूफ है ना। नेक्स्ट, बुक। अच्छा, लेमार्क ने जो भी स्टडी किया था, ये हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया, ये जो सारा लेमार्क ने स्टडी जो किया था उन्होंने, इसके लिए इसको इन्होंने एक बुक पे पब्लिश किया था, तब जाके हम सबको हमने पढ़ा, हमें पता है। बुक क्या था, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है। अच्छा, इसी को लेमार्क ने, ये बुक जो है लेमार्क ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, is there is one more theory that is called neo-Lamarckism. It is nothing but the Lamarckism in the light of evolution. Lamarckism, when it comes under the light of evolution, then we call it as neo-Lamarckism, ठीक है ना। Now the next we'll talk about the Darwin's theory of natural selection. नेक्स्ट थियरी क्या काम बात करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।
तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में मतलब क्या हम पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या है यहाँ पे थ्योरी, क्या कहता है ये थ्योरी. See, the Darwin was inspired by a publication of Malthus. Malthus was a scientist at that time, and he was the Darwin was actually very inspired by the publication of Malthus. And what he have written in the publication, that is the essay of population. ठीक है. So population के ऊपर essay या essay on population जो था Malthus का, it was you know that thing actually inspired Darwin. Okay, so Malthus and essay on population, especially Malthus inspired in Darwin by the essay or the writing of Malthus. Now again we'll talk about the theory of the modern theory of natural selection. So we'll talk about some postulates or the main points as well. Okay. Now the postulates. पहला postulate क्या है? The postulate says the population increase is always geometric. क्या कह रहा है? Population जो increase होता है कभी भी किसी भी सोसाइटी में, जो पॉपुलेशन या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो जब इंक्रीज होता है, दैट इंक्रीज इज इन जियोमेट्रिकली. एग्जांपल, पैरामीशियन रिप्रोड्यूस एवरी 24 आवर्स, देन बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस इन एवरी 20 मिनट्स. ठीक है. सो द फूड सोर्स एंड द स्पेस इज लिमिटेड. ओके. एंड food resource and the space is limited, that is true. And the food resource increase is arithmetic. जैसे population geometrically grow करता है, और food जो resource है वो कैसे grow करता है? arithmetically. वो कैसा है समझ लेते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है geometric मतलब क्या होता है? 2 into 2 into 2 into 2. इसको बोलते हैं geometric progression. geometric geometric progression, where we can say it is 2 into 2 into 2 into 2 like that, and arithmetic matlab 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus like that. So there is a little difference, right? So the postulates, first postulate says the population increase is always geometric, and food resource and space is limited, and the food resource increases is arithmetic. Now, next is struggle for existence. ठीक है. Struggle for existence. First one is intraspecific, second one is interspecific, third one is environmental condition. So intraspecific मतलब same species के अंदर अगर competition है तो उसे बोलते हैं intraspecific. Struggle for existence जिसे बोलते हैं. जैसे example लेते हैं कि मानो कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी अगर जो फीमेल डॉग है, जब वो like when they give birth to their young ones, there will be multiple puppies. बहुत सारे puppies होते हैं, मतलब 5 6 4 5 ऐसा हो सकता है. अब उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि the competition start there itself, beginning of life, right? So the majority, like इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या है कि आप देखोगे कि जब ये पपीज, मान लो 4-5 पपीज पैदा हुए, तो अल्टीमेटली देखना 1 या 2 ही सर्वाइव करता है. क्यों? बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन अमंग देमसेल्फ. दे हैव अ कंपटीशन अमंग देमसेल्फ, इन बिटवीन देमसेल्फ, like because of the competition, to survive, for the survivability, like those say there are some puppies who are more stronger, so they always drink the mother's milk continuously, but they don't allow the other puppy to actually come and drink the milk. As a result, they continuously become stronger and stronger, right? And the weaker one will always become slowly weaker and weaker, and one day they will die. Intraspecific मतलब जब अलग-अलग species के बीच में, in different when there is a competition between different species, then we call it as interspecific. पहला वाला था intraspecific. ठीक है. Now last one is environmental condition. So struggle for existence के ये 3 important point है that we need to know. ठीक है. Now in a population the variation can be found. Yeah, that's true.
In a population we can find there are different types of variation and which can be of two types. दो तरह का variation हमें देखने मिलता है. पहला है continuous variation, दूसरा है discontinuous variation. ठीक है, पहला है continuous variation, दूसरा है discontinuous variation. Now the continuous variation are slow and they are caused due to recombination, because due to decombination. So continuous variation are slow and they are caused due to recombination, whereas the discontinuous is sudden and caused by mutation. ठीक है, so continuous variation जो है वो बहुत slow process है, slowly होता है, and it is actually caused by the recombination during crossing over. As you must have studied in genetics, crossing over किसको कहते हैं? म्यूटेटिक डिवीजन, म्यूटेटिक डिवीजन में वो होता है. And whereas the discontinuous is a sudden caused by mutation. ठीक है, sudden discontinuous it is actually caused by mutation. Fine. Now the next one is natural selection or survival of the fittest, or for the fittest, survival of the fittest. Fifth, inheritance of useful variation, inheritance of useful variation. And the last one is your speciation. Last one is your speciation. Okay, so we'll discuss. Fine. The next is modern theory of evolution. Now this theory was proposed by Hugo de Vares. ये theory किसने दिया था? Hugo de Vares. And he did experiment to understand the mutation effect on evolutionary process, right? Now on evening primrose, he did, the Hugo de Vares actually did the experiment on a special plant that is called the Oenothera lamarckiana, that is the common scientific name, right? And that is the scientific name, and the common name is your primrose plant. Okay, so he did experiment to understand the mutation effect on evolutionary process. So Hugo de Vares ने क्या किया, उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि जो evolutionary process है उसमें मतलब म्यूटेशन का क्या रोल है, क्या इफेक्ट है, that we need to understand. Scientific name क्या है? Oenothera lamarckiana. Now he observed that after self-pollination, majority of the plant shows minor variation. ठीक है? So he observed that after self-pollination, majority of the plant shows minor variation. अब देखो म्यूटेशन थियरी जो है इसमें इन्होंने क्या किया, इसको ये समझने के लिए साइंटिस्ट जो थे हुगो डे वायरेस, उन्होंने जो प्राइमरोज इवनिंग प्राइमरोज जो प्लांट लिया था जिसका नाम है वेनोथेरा लेमार्कियाना, उन्होंने क्या किया, उनके ये जो प्लांट है इसको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया. ठीक है, so they observe, and what they observe after the pollination, self pollination, the majority of the plant shows minor variation. इससे क्या हमें पता चलता है कि मैक्सिमम जो प्लांट थे उनमें जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, बट देयर आर फ्यू प्लांट शोज मेजर वेरिएशन, और कुछ प्लांट्स होते हैं मतलब उनको मिला जिसमें कि बहुत ज्यादा वेरिएशन था. ठीक है, वेरिएशन ऐसा था कि जो प्लांट का जो साइज है, उसके बाद फ्लावर का साइज है, फ्लावर का कलर है, वो भी अलग हो गया था. ठीक है, सो दिस आर द मेजर वेरिएशन, राइट? Now the plant which actually shows major variation also shows difference in chromosome number as well. और क्या उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स थे which shows the major variation also shows the difference in chromosome number as well. ठीक है, so जो प्लांट्स थे जो जिसमें मेजर वेरिएशन मिला, it also shows the difference in the chromosome number as well. The chromosome number में भी जो difference है, that also actually the plant, or like the major variation what you're talking about here is it actually happened because of the major variation. What happened is the chromosome number is also
it can also change, right? Now the normal plant is diploid. Normally जो ये plant evening primrose ये क्या होता है, ये diploid होता है और इसके क्रोमोसोम का नंबर होता है 40. लेकिन जो मेजर, देखो एक चीज आपको पहले समझना है कि उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट जो हुगो डे वेरिस थे, उन्होंने क्या किया, काफी सारी इवनिंग रोज जो प्राइम रोज है उसको एक साथ लिया और सेल्फ पॉलिनेट कर दिया. उसके बाद उनको दो तरह का रिजल्ट मिला. एक जो प्लांट जो थे उसमें माइनर मतलब वेरिएशन था, और जो दूसरा था जिसमें मेजर वेरिएशन था. ठीक है. सो देयर आर वेरिएशन व्हिच आर like more, and those variation, those plants which show the maximum or the more variation, okay, so they actually also shows like variation in their chromosome as well. तो chromosome जो number है वो भी बदल जाता था. ठीक है, बदल जाता है. But the plant with the major variation shows the chromosome number like 16, 20, 24 etc. ठीक है. तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम नंबर है वो 14 है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रोमोसोम नंबर जो है वो मिलता है. ठीक है. एंड दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ वेरिएशन. ठीक है. द प्लांट्स विद द मेजर वेरिएशन शोज क्रोमोसोम नंबर लाइक 16, 20 and 24 and others as well etc. ठीक है. Next, the plant which shows the major variation. ठीक है. अब ये जो मेजर वेरिएशन में भी तो सबसे ज्यादा वेरिएशन दिखाने वाला कोई प्लांट होगा ना. तो the plant which shows the major variation, he named the plant differently as Oenothera gigas और gigas. अब क्या है ना, वेरिएशन जब होने लग गया तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक अलग स्पीसीज ही बनने लग गया. तो उन्होंने इसका अलग नाम भी दिया. ये जो प्लांट तो जो था म्यूटेटेड प्लांट, ये बाकी दूसरे प्लांट के साथ मैच नहीं करता है डायरेक्टली. ठीक है. सो द मेजर वेरिएशन ही नेम्ड द प्लांट एज differently as Oenothera gigas. Now the variation that were observed was sudden, that is discontinuous variation or mutation. तो ये जो वेरिएशन हमें प्लांट के जनरेशन में आफ्टर इट सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट वी एक्चुअली गेट, दैट इज द वेरिएशन. Okay, and what we were actually what were see the variations what were actually observed was sudden. तो ये जो वेरिएशन जो उनको मिला, जो मेजर प्लांट्स में था, सॉरी मेजर वेरिएशन जो कुछ प्लांट्स में था, जो कि जिसमें की वेरिएशन हमें देखने मिला, were actually sudden. So this is actually we can consider it as discontinuous variation or mutation. जिसको हम क्या कहते हैं, discontinuous variation और म्यूटेशन. इसी को हम कहते हैं डिस्कंटिन्यूअस. सडन चेंजेस हो गया अचानक से नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब प्रेजेंट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट नेक्स्ट जनरेशन में काफी सारा चेंजेस हो गया, सडन चेंजेस हो गया, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्कंटिन्यूअस वेरिएशन और म्यूटेशन. इस तरह के कंडीशन को क्या कह सकते हैं, डिस्कंटिन्यूअस वेरिएशन और म्यूटेशन. ठीक है. तो एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा क्या क्या एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज सपोर्टिंग द थ्योरी. पहला जो आपका फर्स्ट like the mutation मतलब sudden change. ठीक है. और there are some examples that we need to discuss which support the theory. ठीक है. तो थ्योरी के सपोर्ट में जो आपके एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक. ठीक है. So the first thing what we're going to discuss, that is your एनकॉन शिप. अब देखो ये जो एनकॉन शिप था, ठीक है, ये जो शिप था एनकॉन शिप, इसके जो लेग्स है वो बहुत छोटे छोटे, वेरी शॉर्ट. ठीक है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सडन म्यूटेशन, दैट इज योर एनकॉन शिप, एंड दिस शिप्स आर आल्सो सडन वैरायटी विथ शॉर्ट लेग्स. अब देखो शॉर्ट लेग्स का एडवांटेजेस क्या है. शॉर्ट लेग्स का एडवांटेजेस ये है कि ये जो शीप है वो मतलब ज्यादा फास्ट नहीं है, ज्यादा जल्दी मूव नहीं कर सकता है ना, एटसेट्रा. नाउ द सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय टू अदर साइंटिस्ट. उनका नाम है
डोगल, मैक्स डोगल और शल, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने लाइक द सिमिलर एक्सपेरिमेंट दे आल्सो परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट। नाउ द कॉमन प्लांट वेयर वी गेट पॉलीप्लॉइडी एज वेल, ठीक है। अभी जो पॉलीप्लॉइडी है वो भी हमें देखने मिलता है, ठीक है, किसमें, प्लांट में, ठीक है। सो दैट आल्सो वी कैन सी। नेक्स्ट, the mutant variety of the plant what the Hugodovirus got during the experiment are actually not that frequent in nature. अब यहाँ पे ये समझना है कि जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्चुअली who actually started this process, and that is your like इट इज जस्ट लाइक दैट कि हमने अभी तक जो देखा कि जो वेरिएशन है, जो डिफरेंट तरह के वेरिएशन है, वो जो थ्योरी है, वो जो उसको पोस्टुलेट्स जो है, उसके जो मेन पॉइंट्स है, उसके सपोर्ट में हमने डिस्कस किया। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया बहुत सारा, जो अकाउंटशिप है, उसके बाद सिमिलर, दूसरा है आपका पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। वैसे ही तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आल्सो नीड टू नो, दैट इज क्रिटिसिज्म एज वेल। एक तो सपोर्ट में थ्योरी को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट और एग्जांपल, दूसरा है क्रिटिसिज्म, मतलब थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा क्या है वो। इस केस में क्या है, यहाँ पे क्या करता है कि जो म्यूटेंट वैरायटी है प्लांट का, actually what the Hugodovirus actually got during the you know experiment are actually not that frequent in the nature। मतलब Hugodovirus ने क्या किया था, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया और उन्हें काफी सारा जो है कुछ प्लांट से जो है उसमें हम उनको वेरिएशन मिला, ठीक है। और ये जो वेरिएशन उनको लैब में, मतलब जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें उनको जो मिला, वो हमेशा जो नेचर है, नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो वहां पे ऐसा नहीं होता है फ्रीक्वेंटली। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो फिर पूरी तरीके से वो थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज नियो डार्विनिज्म और द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। So modern theory of evolution or synthetic theory of evolution. So we'll discuss, right? So let's start. देखो, न्यू डार्विनिज्म जिसको कहते हैं उसी को हम मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, उसी को हम सिस्टेमेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। It says that in a given population there are variation, that is gene variability. It says that in a given population there are variation, that is gene variability. And what are the main points of the postulates of this theory, that is the modern theory of evolution, that is most accepted theory of evolution? The postulate says the number one, gene variability, which the gene variability causes of the gene variability, और वी कैन से द कॉजेस ऑफ द जीन वेरिएबिलिटी, मतलब जीन वेरिएबिलिटी का जो कारण है वो क्या क्या है। पहला है म्यूटेशन, म्यूटेशन कैन बी क्रोमोसोमल और जेनेटिक म्यूटेशन, पहला तो ये है। दूसरा, द क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज इट अफेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल म्यूटेशन। सो इन क्रोमोसोमल म्यूटेशन इट अफेक्ट्स, in chromosomal mutation it affect what, the morphological and the numeric mutation। अब देखो morphology में क्या होता है, तो morphological mutation means it can happen due to addition, duplication, deletion, translocation or inversion of or simply inversion of the chromosome, ठीक है। So morphological mutation it can happen due to addition, then deletion, then translocation, inversion, etc. Now the numeric mutation can be divided in two categories, namely the aneuploidy or euploidy। तो पहला वाला तो morphological था, जो the chromosomal mutation which affect the morphological and numeric mutation, right?
Now, the numeric mutation can be divided in two categories, namely aploidy and euploidy. Aploidy में क्या होता है प्लस और माइनस 1 और 2, ठीक है. देन एपिप्लॉइडी में क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन सेट. क्रोमोसोम का जो नंबर चेंज होता है वो सेट में चेंज होता है, ठीक है. नाउ so the next topic, the next class will continue with this lecture. So till then, take care. Thank you.